I'm your host, Slim bin Mohammed Rafi, and I am going to reflect at what I think, what is my take on Iran, Russia, China, and why they have been humiliated, defeated, and taken by surprise, and they have no future if they help each other, weakly, untimely. It stitched in time saves nine. Neither China nor Russia might helped, otherwise the Syria would not have fallen into the hands. And see the jubilations by the large bearded Jews standing in the Syrian territory, already dividing Syria and thinking of rebuilding and occupying and making it a Jewish country. There's never in the world you have seen that a country has been stolen by the terrorist people. There was a booty on their head of millions of dollars. Remember that the whole world gathered to destroy Baghdadi, and they said, we have spent billions of dollars so that there is no Khilafat, there is no Islamic, ever an empire like Ottoman Empire, and they killed them. And now see the hypocrisy. They are supporting the deputy of the same person, this Muhammad Jilani, and see this young person, unless you go into the depths that who did it, who funded it, who supported it, who planned it, and people will spit and will pray that Erdogan, the Turkish president, burns in the deepest pits of hell, and people spit on his grave because he is the one who facilitated in the greed to get rid of the few, he called KKK, and these, they want, this small, gains, it's penny wise, pound foolish, such a small thinking, and Kurdistan, the Kurds live in Iraq, Kurds live in Syria, Kurds live in, Turkey. So they found their own country, and that struggle has been going on for years and years and years. And in order to have this movement completely suppressed, this man has sold his soul. And so unless Erdogan would have sold his soul, the Muslim Ummah would have never ever been stabbed from the back. And now sit and see the jubilations in the mosque. See that when the whole of their Air Force, all of the fleet of Air Force, which took almost 100 years, all the ships, all their ammunition, all their industry, all their के लिए मयंक मेरे साथ जुड़ गए हैं। मयंक, जुलानी की धमकी नेतन्याहू को, और कहा यह जा रहा है कि आप जो कर रहे हैं सीरिया में वो ठीक नहीं है, और उसने कहीं ना कहीं एक ये भी ऑर्डर दे दिया है कि जहां भी इजरायली सेना दिखाई दे उनको फौरन देखो और हमला कीजिए। बिल्कुल, देखिए सीरिया में जो है अभी तक जो जंग चल रही थी, अब इसका एक प्रकार से आप देखें तो इसका पूरा नेचर बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। और पहली बार ऐसा बताया जा रहा है कि देखिए इजराइल की सेना दमिश्क के बहुत करीब है, और ये बात एसटीएस के जो चीफ हैं जुलानी, इनको बिल्कुल पसंद नहीं आ रही। पहले भी इस बात की चर्चाएं थी कि क्या ये जुलानी वर्सेस इजराइल होने जा रहा है, अब ये हो चुका है। और बताया जा रहा है कि जुलानी ने, जैसे आपने चर्चा की कि सोशल मीडिया पे इसकी बड़ी चर्चाएं हैं, कि जुलानी ने बिना नेतन्याहू का नाम लिए बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने अपने, जुलानी के पास एक तो ये बात आपको समझनी होगी कि 80,000 लड़ाके हैं, और ये बड़ी संख्या है, बहुत बड़ी संख्या है हिजबुल्लाह की तरह ही। और दूसरी चीज़, इन्होंने ये ऐलान कर दिया है कि जहां भी इजराइल के सैनिक दिखते हैं इन पे हमला किया जाए। ऐसी चर्चाएं हैं कि जुलानी की तरफ से, सोशल मीडिया पे कहा जा रहा है कि जुलानी की तरफ से अपने लड़ाकों को ये कहा गया है कि जहां भी इजराइल और नेतन्याहू की फोर्सेस दिखती हैं आप उनको निशाना बनाइए। इसके साथ ही जुलानी ने एक बात और कही है कि सीरिया पे, जुलानी का कहना ऐसा है कि सीरिया पे जब किसी ने कब्जा करने की कोशिश की है वो कभी सफल नहीं हो पाया, और उसने हमेशा मुंह की खाई है। अगर आप देखें तो एक हद तक ये बात सही भी है। सीरिया में जो है वो किसी का शासन बहुत लंबे समय तक टिक नहीं पाया, और अब जो जिस तरह से नेतन्याहू इस पूरे मौके का फायदा उठा के आगे बढ़ रहे थे, और जिस तरह से इजराइल की फोर्सेस अंदर तक पहुंच गई सीरिया में,
ये बात अब जुलानी को रास नहीं आ रही है, और अब ये जो लड़ाई है ये इजराइल वर्सेस जुलानी होने जा अच्छा, रही है। ये कल भी हमने बात की थी कि जुलानी को लेकर अमेरिका भी नहीं चाहता कि वहाँ शासन जुलानी का हो, बिल्कुल, और हाँ, कहीं भी ना तो अमेरिका के लिए ना ही इजराइल के लिए ये मुफीद है। ऐसे में अब जुलानी ये कह रहे हैं कि सीधे सीधे धमकी है, एक तरह से खुले तौर पर धमकी है। तो ऐसे में वहां पर आप क्या स्थिति इस वक्त बनती देख रहे हैं? देखिए अब क्या है वहाँ पे हालात ये है कि जो और क्या आपको लगता है कि दमिश्क एक सबसे बड़ा संगठन है और ये देखिए दो तीन चीजें हैं, आपने अच्छा सवाल पूछा। दो तीन चीजें हैं। पहली बात तो ये कि दमिश्क पूरा जो है वो उस पे पूरा जुलानी का कब्जा है, उसके लड़ाके दमिश्क और उसके आसपास के इलाकों पे पूरी तरह से उनका कब्जा है। दूसरी चीज, इनको जो है एचटीएस को और एसएनए जो दो संगठन हैं, इनको जो है तुर्की की तरफ से हथियार भी मिल रहे हैं, गोला बारूद भी मिल रहा है। इनको जो है जितनी तरह की फंडिंग हो रही है वो तुर्की की तरफ से हो रही है। इन हालात में एक तरफ तो बशर अल असद की सेना के हमला किया था, ये आज जो हमला किया है वो सिर्फ उन्होंने टेस्ट किया है। अब आप ये सोचें कि ये अब तक का इजराइल का लार्ज स्केल का हमला था जो उनकी नेवी की फोर्स ने किया है। ये किस तरह का इनका नया मिसाइल है इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन एक बात तय है कि इजराइल ने जो हमला किया है ये सिर्फ इसलिए किया है कि वहां से रूस की फौजें चली गई। अब आप सोचें कितना खतरनाक हमला है, कितना खतरनाक हमला है कि वहां पर ज़लज़ला बरपा हुआ है, और गालिबन अगले कुछ अरसे के अंदर इजराइल एक ऐसा हमला करने वाला है जिसके बाद शाम के अंदर बड़े पैमाने पर ज़लज़ला बरपा होगा, यानी उसकी वेव्स जाएंगी और वहाँ पर घर गिरना शुरू हो जाएंगे, बिल्डिंग्स गिरना शुरू हो जाएंगी, तबाही हो जाएगी। और इस सारी सूरत हाल के अंदर वो चाह रहे हैं कि देखिए इनके पास क्या था, गज़ा में इनको मिला था एक मौका, यानी हमास ने हमला किया तो गज़ा को तो इन्होंने बना दिया खंडर। कारपेट बॉम्बिंग की, किस नाम के ऊपर? इस नाम के ऊपर कि जी हम हमला करेंगे, हम बिल्डिंग्स तबाह करेंगे, फलाना। यहाँ उनकी स्ट्रेटजी डिफरेंट है। यहाँ वो ये सोच रहे हैं कि इजराइल पर हमला तो हो नहीं रहा, जुलानी को लोग कोस रहे हैं, वो हमला तो करने के लिए आ नहीं रहा, तुर्की भी हमला नहीं करा, तो दो ही सूरत हाल है, खाना जंगी करवाए और ज़लज़ला बर्पा करवाए। अब ज़लज़ला बर्पा करवाने की उन्होंने आज जो एक नया मिसाइल टेस्ट किया है, इसको जब अब लार्ज स्केल पर इस्तेमाल करेंगे तो दमिश्क समेत बहुत सारे जो इलाके हैं वहाँ पर ज़लज़ला बर्पा हो जाएगा। और ज़लज़ला जब बर्पा होगा तो आप ये देखें लोगों के घर गिर जाएंगे, चीज़ें गिर जाएंगी, और यही वो टाइम होगा कि जब इजराइल आगे आएगा। देखिए दुनिया ये सोचती है कि जी इतना आसान है कि इजराइल आए और ये काम कर ले। जी जी इतना ही आसान है, बिल्कुल इतना ही आसान है। 1967 के बाद अब उनको मौका मिला है। ये जुलानी टाइप जो लोग हैं, ये दाइश के, ये इतने घटिया लोग हैं, इतने घटिया लोग हैं कि ये मर जाएंगे सारे, मर जाएंगे सारे। ये कभी इजराइल के खिलाफ लड़ाई नहीं करेंगे, कभी भी नहीं। यानी इनका मकसद यही था कि इन्होंने ईरान को निकालना था, रूस को निकालना था, चाइना के इन्फ्लुएंस को ख़त्म करना था, हिजबुल्लाह को करना था, हमास की कमर तोड़ कर रख दी है इन्होंने शाम की सप्लाई बंद होने के बाद। तो अब आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि किस लेवल पर जाकर अब ये असल में इनका प्लान शुरू से यही था कि गजा भी इजराइल टेक ओवर करे, फलाना करे। शाम में वो आए उनके गेम की वजह से थे। यानी आपको पता है कि सारी सूरत हाल में हुआ क्या था, इजराइल ने ऐसी सेटिंग करके रखी थी, शाम की फौज को उन्होंने मुकम्मल खरीदा हुआ था, मुकम्मल अंदर तक पेनिट्रेट कर गए थे। और उसके बाद उन्होंने जुलानियों को सिर्फ ये कहा है तुर्की की मदद से कि आप सिर्फ लड़ाई करने के लिए अब निकले। वो निकलना शुरू हो गए, फौज पीछे हटना। जो हथियार थे जिसकी हमने चर्चा की थी कि एक टनल मिली है, उसमें मिसाइल्स भी हैं, तो वो सब जो चीजें मिल रही हैं, जो टैंक्स मिले हैं, जो गोला बारूद मिला है बशर अल असद की सेना से, उस पे तो जुलानी कब्जा कर ही चुके हैं, वो उनके पास आ ही चुके हैं। चर्चा है केमिकल वेपन्स की भी थी कि जो केमिकल वेपन्स हैं क्या ये जुलानी के हाथ लग गए हैं, सच कोई नहीं जानता क्या है, लेकिन अमेरिका भी इस बात को लेकर सतर्क है और इजराइल भी है। अब ऐसी स्थिति में देखिए जुलानी के पास इस समय कितनी ताकत है, 80,000 के आसपास तो उनके लड़ाके हैं, इसमें कोई शक नहीं है। इनके पास कितने हथियार हैं, और अगर ये इजराइल वर्सेस जुलानी आमने सामने की लड़ाई होती है तो ये क्या रूप लेगी, ये क्या हिजबुल्लाह और इजराइल का जो स्थिति थी लेबनान में, क्या इस तरह की कोई स्थिति बनेगी? देखिए इजराइल के लिए एक नुकसान की बात कह लें आप, या चैलेंज ये है कि इजराइल इस समय सीरिया की जमीन पे है। आप अपने बॉर्डर पे जब युद्ध कर रहे होते हैं तो थोड़ा सा आसान होता है, लेकिन जब आप दूसरे देश में, हम बार बार ये बात कहते हैं कि अब वो जमाने चले गए जब आप जो है किसी दूसरे के देश में अंदर घुस जाएं और अपनी सेना को वहां बसा लें और टिके रह जाएं वहां। अब वो जमाने गए। आप कह रहे हैं कि जुलानी की सेना अच्छी खासी बड़ी है, तादाद इसकी बड़ी है, वेपन्स भी इनके पास अच्छे खासे हैं, तो क्या जो इस वक्त
जो पुरानी तानाशाह सरकार से लूटी गई वेपन थी, क्या ये भी हम मान के चले कि आर्टिलरी जुलानी उसका के हाथ इस्तेमाल, लगी? हाँ, ऐसा बताया जा रहा है कि बड़ी मात्रा में जो असद के हथियार थे वो अब जुलानी के पास है। लेकिन देखिए नीलू, इसमें है ना कई चीजें हैं। एक सवाल ये भी है कि क्या नेतन्याहू वाकई दमिश्क पे सीधा हमला करेंगे, या ये देखिए आप अभी दमिश्क के करीब हैं, करीब 10 किलोमीटर पहले तक बताया जाता है कि 10 किलोमीटर पहले इजराइल पहुंच चुका है। लेकिन क्या इसके आगे इजराइल जाएगा, ये एक अपने आप में बड़ा सवाल है। देखिए इजराइल चाह क्या रहा है, क्या वो एक बड़ा बफर जोन बनाना चाहता है, क्या वो ये चाहता है कि इजराइल की कुछ ज़मीन पे कब्जा कर लिया जाए। हिजबुल्लाह के हथियार सप्लाई जो होती वो सीरिया से होती थी, वो पूरी तरह से बंद हो गई है अब, तो ये हिजबुल्लाह के लिए बड़ी चुनौती है। अब सवाल ये है कि इजराइल और अमेरिका असल में सीरिया में चाहते क्या हैं। क्या ये यहाँ पे इजराइल की नेतन्याहू की कोशिश ये है कि यहाँ की ज़मीन हथियाई जाए और यहाँ पे परमानेंटली बैठ लिया जाए। ये दमिश्क पे हमला करेंगे कि या नहीं करेंगे, और अगर करते हैं तो उसका क्या परिणाम होगा। देखिए अगर दमिश्क पे इजराइल का हमला होता है तो ये वॉर का स्केल और बड़ा होगा। The war in Syria, and you may actually hear from grown-up reporters who are lying through their teeth or ignorant beyond imagining that, oh, the war in Syria, yes, Russia intervened in Syria. Well, do you know that that Obama tasked the CIA to overthrow the Syrian government, starting 4 years before Russia intervened? What kind of nonsense is that? And how many times did the New York Times report on Operation Timber Sycamore, which was the presidential order to the CIA to overthrow Bashar al-Assad? 3 times in 10 years. This is not democracy. This is a game. And it's a game of narrative. Why did the U.S. invade Iraq in 2003? Well, first of all, it was completely phony pretenses. It wasn't, oh, we were so wrong, they didn't have weapons of mass destruction. They actually did focus groups in the fall of 2002 to find out what would sell that war to the American people. Abe Schultzky, if you want to know the name of the PR genius. They did focus groups on the war. They wanted the war all the time. They had to figure out how to sell the war to the American people, how to scare the shit out of the American people. It was a phony war. Where did that war come from? You know what? It's quite surprising. That war came from Netanyahu, actually. You know that? It's weird. And the way it is that Netanyahu had from 1995 onward the theory that the only way we're going to get rid of Hamas and Hezbollah is by toppling the governments that support them. That's Iraq, Syria, and Iran. And the guy's nothing if not obsessive. And he's still trying to get us to fight Iran this day, this week. He's a deep, dark son of a bitch, sorry to tell you. Because he's gotten us into endless wars, and because of the power of all of this in the U.S. politics, he's gotten his way. But that war was totally phony. So what is this democracy versus dictatorship? Come on. These are not even sensible terms. There is absolutely no basis under international law to preventively or preemptively disarm a country you don't like. I mean, if that were the case, it would be a recipe for global chaos, because lots of countries have adversaries they would like to see without weapons. This is completely lawless. That there is absolutely no basis in international law to do it. But it's a continuation of what Israel has been doing in Syria for at least a decade. So many hundreds of preventive attacks have been launched by Israeli forces in Syria to destroy Hezbollah weapons dumps, storage facilities, in circumstances where there is no armed attack from Hezbollah on Israel from Syria. And that would be the only circumstance in which you could use self-defense against Hezbollah in Syria. So it's different from the situation in Lebanon, because there is a hot conflict there. But you can't just follow your enemy wherever they are in the world and bomb them in some third country, which has been Israel's approach. It's also done it of course, in other ways, and we've commented on this previously, through campaigns of assassinations of adversaries in third countries, including in quite a few number of cases of civilians. I mean, think of the multiple assassinations of Iranian nuclear scientists over the last 10-15 years. शुरू हो गई और सारे का सारा मामला आपके सामने है।
अब ये करने जा रहे हैं कुछ बड़े एक्सपेरिमेंट्स, और वो एक्सपेरिमेंट्स हैं बड़े खतरनाक। उन एक्सपेरिमेंट्स के अंदर ये कुछ ऐसे तर्ज के हथियार इस्तेमाल करने जा रहे हैं जो हमने आज से पहले ना देखे हों। अब गालिबन ऐसी सूरत हाल पैदा हो रही है कि इनको जल्द अज जल्द शाम के वो इलाके चाहिए, तो पहले ये काम करेंगे, कुर्दों से जुलानी टाइप के खिलाफ लड़ाई करवाएंगे, फिर इलाके लेंगे, और आहिस्ता आहिस्ता ये याद रखिएगा जुलानियों को ये सबको ये शिकस्त हो जाएगी, ये कुर्दों के थ्रू हो जाएगी। कुर्द बहुत तेज़ है, लेकिन इस सारी सूरत हाल में एंड के ऊपर ये कुर्दों को भी नहीं छोड़ेंगे। एक तरफ ये उनको मारते रहेंगे, दोनों आपस में एक दूसरे को तबाह करते रहेंगे, फिर एक टाइम आएगा कि इजराइल इन सबको फारिग कर देगा। अब इनकी सप्लाई लाइन काटने की क्या तैयारी? सप्लाई लाइन काटने की तैयारी ये है कि अमेरिका शदीद एडवांस टेक्नोलॉजी इसराइल कुर्दों को दे रहा है, जुलानियों को टेक्नोलॉजी मिलेगी तुर्कियों की जानिब से। अब तुर्क क्या करें? अब उनको यानी तुर्की को मुकम्मल तौर पर ये फंसाने के लिए जा रहे हैं और इनके ऊपर दहशत गर्दी और ये वो इन पर लगाने जा रहे पाबंदियाँ। अर्दोगान को भी पता नहीं है वो किस गीली मिट्टी के ऊपर उसने पाँव रख दिए हैं। यानी अभी तक वो ये सोच रहा है कि ठीक है, मैंने दुनिया को धोखा दे दिया, मैं गजा नहीं लड़ने के लिए गया, मैं फलाना नहीं गया, तो मैं यहाँ पर ये काम करता हूँ। लेकिन आप उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि इन्होंने तुर्की में करना क्या है। एक पाबंदी, सिर्फ एक पाबंदी लगनी है और उसके बाद तुर्की का बचना कुछ नहीं है। अब हुआ क्या है कि उर्दन का जो किंग है उसको एक पैगाम गया है अमेरिका की जानिब से, और वार्निंग ये जारी की गई है कि जो शाम में हुआ है वो उर्दन में होने वाला है, और अब आप तैयारी करें कि हमें खतरा ये है। यानी वो असल में पैगामात तो वार्निंग क्या होती है बताने के लिए गया है कि भाई तू तैयार रहे, तेरा नंबर आ गया है, अब तेरी ईंट से ईंट बचने वाली है और तुझे कोई बचा नहीं सकेगा। जो हथियार थे जिसकी हमने चर्चा की थी कि एक टनल मिली है, उसमें मिसाइल्स भी हैं, तो वो सब जो चीजें मिल रही हैं, जो टैंक्स मिले हैं, जो गोला बारूद मिला है बशर अल असद की सेना से, उस पे तो जुलानी कब्जा कर ही चुके हैं, वो उनके पास आ ही चुके हैं। चर्चा है केमिकल वेपन्स की भी थी कि जो केमिकल वेपन्स हैं क्या ये जुलानी के हाथ लग गए हैं, सच कोई नहीं जानता क्या है, लेकिन अमेरिका भी इस बात को लेकर सतर्क है और इजराइल भी है। अब ऐसी स्थिति में देखिए जुलानी के पास इस समय कितनी ताकत है, 80,000 के आसपास तो उनके लड़ाके हैं, इसमें कोई शक नहीं है। इनके पास कितने हथियार हैं, और अगर ये इजराइल वर्सेस जुलानी आमने सामने की लड़ाई होती है तो ये क्या रूप लेगी, ये क्या हिजबुल्लाह और इजराइल का जो स्थिति थी लेबनान में, क्या इस तरह की कोई स्थिति बनेगी? देखिए इजराइल के लिए एक नुकसान की बात कह लें आप या चैलेंज ये है कि इजराइल इस समय सीरिया की जमीन पे है। आप अपने बॉर्डर पे जब युद्ध कर रहे होते हैं तो थोड़ा सा आसान होता है, लेकिन जब आप दूसरे देश में, हम बार बार ये बात कहते हैं कि अब वो जमाने चले गए जब आप जो है किसी दूसरे के देश में अंदर घुस जाएं और अपनी सेना को वहां बसा लें और टिके रह जाएं वहां। अब वो जमाने गए। आप कह रहे हैं कि जुलानी की सेना अच्छी खासी बड़ी है, तादाद इसकी बड़ी है, वेपन्स भी इनके पास अच्छे खासे हैं, तो क्या जो इस वक्त जो पुरानी तानाशाह सरकार से लूटी गई वेपन थी, क्या ये भी हम मान के चले कि जुलानी का इस्तेमाल? हाँ, ऐसा बताया जा रहा है कि बड़ी मात्रा में जो असद के हथियार थे वो अब जुलानी के पास है। लेकिन देखिए नीलू, इसमें है ना कई चीजें हैं। एक सवाल ये भी है कि क्या इजराइल, क्या नेतन्याहू वाकई दमिश्क पे सीधा हमला करेंगे, या ये देखिए आप अभी दमिश्क के करीब हैं, करीब 10 किलोमीटर पहले तक बताया जाता है कि 10 किलोमीटर पहले इजराइल पहुंच चुका है, लेकिन क्या इसके आगे इजराइल जाएगा? ये एक अपने आप में बड़ा सवाल है। देखिए इजराइल चाह क्या रहा है, क्या वो एक बड़ा बफर जोन बनाना चाहता है, क्या वो ये चाहता है कि इजराइल की कुछ ज़मीन पे कब्जा कर लिया जाए? हिजबुल्लाह के हथियार सप्लाई जो होती वो सीरिया से होती थी, वो पूरी तरह से बंद हो गई है अब, तो ये हिजबुल्लाह के लिए बड़ी चुनौती है। अब सवाल ये है कि इजराइल और अमेरिका असल में सीरिया में चाहते क्या हैं? क्या ये यहाँ पे इजराइल की नेतन्याहू की कोशिश ये है कि यहाँ की ज़मीन हथियाई जाए और यहाँ पे परमानेंटली बैठ लिया जाए? ये दमिश्क पे हमला करेंगे कि या नहीं करेंगे, और अगर करते हैं तो उसका क्या परिणाम होगा? देखिए अगर दमिश्क पे इजराइल का हमला होता है तो ये वॉर का स्केल और बड़ा होगा। Office buildings being bombed and destroyed by a small, little, tiny Jewish state implanted by the West together by Great Britain and Harry Truman right in the heart of the Muslim world. So now grieve, cry, but that's useless crying that now they are going to destroy Masjid al-Aqsa and they are going to sacrifice the red cow and they are going to build their Solomon's temple, and that is again another nail in the coffin which will expedite the end of times, and then all this jubilation will be for a short while only. And see all those little, in whole of America, this experiment, they say that it is aliens,
because they cannot shoot them down. And in every city, starting from New Jersey to New York, the whole of United States, you have seen that there have been drones and plane-like flying objects. And imagine they scanned the whole of United States. This was just a small sample how the world has gone. And I'm sure the people will know that the China and Iran, they have gone hundreds and hundreds years ahead of the United States and Europe, and they can very quickly target even, Trump in his bedroom and kill him, or kill any White House resident, or kill any governor in any of the 52 states of United States. And that's the end of the United States, then it's the end of Europe, and it's the end of this little illegitimate child called the Zionist child, the state of Israel. And that will show you that how the end of time will just surprise you all. यूनिवर्सल टेलीविजन को सब्सक्राइब करना ना भूलें, उसके बाद बेल बटन पे क्लिक करें और अपने कमेंट्स के सेक्शन में अपने कीमती जो ख्यालात का इजहार ज़रूर